Hello everyone, a grand welcome to all of you on your most favorite neat informative channel Medica Wing. I am Amit and you are watching Medica Wings YouTube channel. दोस्तों GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल इन महाराष्ट्र। GMC कॉलेज नागपुर की फ़ीस कितनी है, कट ऑफ क्या रहेगी 2020 में, 2019 और 2018 में, जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी और क्लोजिंग मार्क्स से वो कितने थे, डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये मार्क्स कितने हो जाते हैं, जनरल, OBC, SC, ST या फिर PH या PWD कैंडिडेट्स के लिए डिस्कस करेंगे उन सभी पॉइंट्स के बारे में जिन्हें आप जानना चाहते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना नीट के एग्ज़ाम को देखते हुए। यू प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग। Okay students, let's get to know each and every details about GMC Nagpur. Talking about the fee structure and the available seats, then available seat check करने के लिए you have to visit mciindia.org website, and here is the college, Government Medical College Nagpur. Total available seats are there in 250. Earlier it was 200 seats, but after the EWS quota reservation introduced in MBBS, it increased the seats number by 50 and the total seats are 250 for MBBS. Okay, talking about the fee structure, then the annual fees for AIQ candidate is 99,300 rupees, and there is a hostel facility for male and female. The monthly hostel due is 335 rupees. There is a question that is there any bond condition with GMC Nagpur? Then of course there is a bond condition. Let's get to know about the bond condition. Here is the bond details of GMC Nagpur, and there are two types of bond in GMC Nagpur. Number one is of service bond, number second is of penalty for lapse of seat. Means service bond is there, means after completion of MBBS or BDS from GMC Nagpur you have to serve the government for a period of 1 year, failing which she will be required to pay rupees 10 lakh only for the default. Additionally she will be required to sign an undertaking to the effect that he or she will not leave India within a period of 5 years from the date of obtaining the degree. Okay, this is the service bond. But when talking about the penalty for lapse of seat, any candidates responsible for lapse of MBBS or BDS seats will have to pay a penalty of 10 lakh rupees. In both the cases the penalty is 10 lakh rupees, right? So there is a bond, and there is two types of bond in GMC Nagpur. One is for service bond, that and second is for lapse of MBBS seats. Means after final round of allotment, if you do not take the admission, then you have to pay. Guys, talking about the fee structure of GMC Nagpur by state quota, then here are the details of state quota fee. For Maharashtra quota student for MBBS course open category, the total fee is 71,900 plus 11,500 plus 500 plus 500, and all the fees you have to pay by DD. And the total fee for reserved category of Maharashtra, the fee structure is 13,500 rupees. Now friends, here are the details of 2018 for GMC Nagpur in Maharashtra. Here is the list of opening rank and opening mark for different category, and the closing rank and closing mark for different category for 2018. Go to the website of Maharashtra NEET Counseling Authority and you will easily obtain the data of 2018, and here the details are given below. और फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो लास्ट कट ऑफ था डिफरेंट कैटेगरी का वो कितना था, और लास्ट मार्क या फिर मिनिमम मार्क जो रिक्वायर था 2018 में GMC नागपुर में एडमिशन के लिए वो कितना था। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ये दिया गया है, यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। और डिफरेंट कैटेगरी मेंशन की गई है, SC, ST, BJ, NT1, NT2। वी नो दैट महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन होता है 75% का, डिफरेंट बहुत सारे कोटा होते हैं महाराष्ट्र के रिजर्वेशन में। ओनली 25% सीट इज़ देयर फॉर जनरल कैंडिडेट। तो GMC नागपुर की अगर हम बात करें, देन S स्टैंड्स फॉर द स्टेट रैंक एंड M स्टैंड फॉर मार्क्स। ओके, सो SC कैटेगरी के लिए जो स्टार्टिंग थी वो थी 511 नंबर से, जो लास्ट मार्क था वो 468 था, जो स्टार्टिंग रैंक थी 17,660 और लास्ट रैंक थी 35,038। ओके, ST कैंडिडेट के लिए ये नंबर 456 स्टार्टिंग और 363 लास्ट था, यानी 363 के ऊपर जो थे उनको एडमिशन मिल गया था ST कैंडिडेट को GMC नागपुर में, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में। ओके,
वीजे कैंडिडेट के लिए 479 नंबर फर्स्ट यानी ओपनिंग थी, जो क्लोजिंग मार्क्स था वो था 452, रैंक थी 43,296। NT1, NT2, NT3 यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। OBC के लिए 542 नंबर स्टार्टिंग थी, 518 नंबर क्लोजिंग था और रैंक था 9,130 और लास्ट रैंक था 15,391। ओके, फॉर ओपन कैटेगरी यानी जनरल के लिए ये मार्क बढ़ गया था, 613 स्टार्टिंग थी ओपनिंग रैंक और 524 लास्ट रैंक थी, यानी 524 नंबर अगर आपके थे तो आपको एडमिशन मिल जाता GMC नागपुर में। ओके, स्टार्टिंग रैंक 858 से शुरू हुआ था, लास्ट रैंक जो था 13,665। ओके, फॉर D1 कैटेगरी, D2, D3, PH यहाँ पे मेंशन किया गया है। PH के लिए जो लास्ट जो एक ही कैंडिडेट का एडमिशन होता है उसके नंबर 119 थे और उसकी जो रैंक थी 6,32,508। ओके, सो ये GMC की 2018 की डिटेल थी। अब हम बात करेंगे 2019 का। ओके, 2019 में हम ऑल इंडिया कट ऑफ देखेंगे GMC का डिफरेंट कैटेगरी के लिए और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि 2020 में ये कितना जाने वाला है। राइट गाइस, सो फ्रेंड, हियर इज़ द डिटेल ऑफ 2019 राउंड 1 काउंसलिंग फॉर GMC नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर के लिए। जो स्टार्टिंग रैंक थी इट वाज 262 यानी 262 ओपनिंग रैंक थी ऑल इंडिया कोटा की, और जो अलॉटेड कैटेगरी थी वो जनरल, एंड जनरल के लिए जो लास्ट रैंक थी दिस वाज 2735, मतलब 2735 ऑल इंडिया कोटा GMC नागपुर के लिए। MBBS की हम बात कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी। राइट, SC के लिए स्टार्टिंग ओपनिंग रैंक थी 5,995 और SC के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 17,108। ओके, ST के लिए ये स्टार्टिंग थी 38,564 और ST के लिए जो लास्ट अलॉटमेंट था वो था 49,526 पे। और अगर हम PWD कैटेगरी की बात करें देन PWD में ये जो रैंक थी ये था 1,64,181 ऑल इंडिया कोटा के थ्रू GMC नागपुर अलॉट किया गया था। ओके, राउंड 1 काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। लेट्स चेक द राउंड 2 काउंसलिंग रिजल्ट ऑफ 2019। देन राउंड 2 काउंसलिंग में अगर हम जनरल अलॉटेड कैटेगरी की बात करें देन फ्रेंड्स, जनरल में जो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था सेकेंड राउंड में इट वाज 4,565। ओके, एंड जनरल EWS की अगर हम बात करेंगे, जनरल EWS में जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 4,849। ओके, हेयर इज़ द अलॉटमेंट फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। और जो कैंडिडेट थे इन्होंने पहले पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर चूज़ किया था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया। फ्रेश अलॉटमेंट इनका हुआ GMC नागपुर में, 4,849 रैंक थी इनकी और ये बिलोंग करते थे जनरल EWS कैटेगरी में। SC ST की अगर हम बात करें तो SC में फाइनल अलॉटमेंट सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में जो हुआ था वो 46,003 के रैंक पे हुआ था। ST में जो फाइनल अलॉटमेंट हुआ था वो 67,568 रैंक पे हुआ था। राइट, और अगर हम OBC PWD की बात करें जिनका अलॉटमेंट जनरल PWD में हुआ था तो उनका जो रैंक था वो था 2,82,289। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स कि जनरल कैटेगरी अगर आपकी है और आप चाहते हैं कि आपको GMC नागपुर का सीट अलॉट हो तो इस ट्रेंड एनालिसिस को 2018 या फिर 19 को देखते हुए हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि जो रैंक है सीट बढ़ने की वजह से थोड़ा सा डाउन जाने वाला है, लेकिन फिर भी आपकी रैंक अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपकी रैंक 6,000 के अंदर ही होनी चाहिए। यानी अगर आपकी रैंक 6,000 के अंदर है तो फिर आप जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको सीट GMC नागपुर में मिल सकता है। ओके, और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर ये आपको जो रैंक है वो 5,000 के अंदर होना चाहिए। और अगर आप SC या फिर ST से बिलोंग करते हैं तो SC कैंडिडेट के लिए ये रैंक आपका पहुंच जाएगा 50,000, जबकि ST कैंडिडेट के लिए ये जो ऑल इंडिया रैंकिंग है ये पहुंच जाएगा 2020 में अराउंड 75,000। ओके, सो ये एनालिसिस थी 2019 की और 2018 का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और लेट्स चेक कर लेते हैं कि मार्क्स हमारे कितने चाहिए अगर उस रैंक की हम बात करते हैं। देन फॉर SC कैंडिडेट्स के लिए ये नंबर आपके होने चाहिए 450 से ऊपर। ओके, 450 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो फिर आपके चांस है GMC मेडिकल कॉलेज नागपुर मिलने का। ST कैंडिडेट के लिए ये नंबर 355 के ऊपर होना चाहिए।
और वहीं पर अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, देन जनरल कैटेगरी के लिए ये नंबर आपके मोर देन 520 होने चाहिए, और ओबीसी के लिए ये नंबर होने चाहिए 515, यानी 515 के ऊपर अगर आपका है ओबीसी कैंडिडेट में। जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक 520 के ऊपर है, देन यू विल बी गेटिंग अ सीट इन 2020 इन जीएमसी नागपुर फॉर एमबीबीएस। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो डेटा था ये 2018 और 2019 के डेटा को एक एनालिसिस करके बनाया गया है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे जो डेटा है इनकी एक फ़ाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप अपने रेफरेंस के लिए वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज की डिफरेंट डिटेल्स है वो कैसी है, और जो बॉन्ड कंडीशन है वो कैसा है, और जो रैंक का है ये रैंक की डिटेल्स भी नागपुर के लिए मैं सभी कैटेगरी के लिए ये एक्सेल फाइल में अपलोड कर रहा हूँ। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि आप एक आइडिया लगा सकें कि आपका रैंक कितना जाने वाला है या फिर आपको कितने नंबर चाहिए 2020 में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।